नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और अपने रिस्पॉन्स भेजते रहें। वी लव रीडिंग योर रिस्पॉन्सेज, वी लव टू नो व्हाट यू थिंक, even though sometimes what you think may not be quite palatable, but it is what you think. That's important. And you believe in the freedom of speech. Oh yes, absolutely. Unlike a lot of other people, we don't believe in worship, belief. we don't believe in suppressing the voices of people, especially suppressing the voices of dissent. We need dissent. Democracy is dissent. Democracy is not agreement, and we are a democracy. हिंदुस्तान एक जनतंत्र राज्य है और जनतंत्र राज्य में एक दूसरे से विचारों का जो अभाव है उसकी वजह से जनतंत्र राज्य बनता है। जनतंत्र राज्य सहमति से नहीं बनता है, असहमति से बनता है, याद रखिए। क्रिएटिव डिसेंट, बुलवॉक ऑफ डेमोक्रेसी। प्रदीप जी आप ये बताइए कि ये जो क्या है, वो न्यूज़ क्लिक जो है उसके ऊपर बड़े रेड वगैरह हो रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहे हैं, वो चाइनीज पैसे वैसे कुछ मिले, यार हमें तो कोई नहीं देता, ठीक है बात है। और चाइनीज फंड्स उसी कंपनी के थ्रू एलिगेशंस है कि इट हैज गॉन टू सम सीपीआईएम लीडर्स। यस। और बहुत सारे सीपीआईएम के जो नहीं साहब, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आई फील लेफ्ट आउट। आई मीन एनी ऑफ दीस फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यार मतलब हमारा तो नाम ही नहीं आता। अनफेयर टू लीव यू आउट, यू आर वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड, रिस्पेक्टेड, मतलब ये तो गलत है यार। मतलब जर्नलिस्ट ऑफ ऑल टाइम, वी मस्ट राइट टू मिस्टर जी जिनपिंग व्हाई यू आर बीइंग अनफेयर। क्या है ये? I think you need to mark him on every post. Yes. We are tagging on every post. Hey, even though X is banned in China, but still we'll try. You know, मेरा नाम चिन चिन चू। या Facebook में टैग करे, Twitter में X is not the correct, तो Instagram में तो मतलब or we posted on some Chinese app. Oh yes, that Chinese social media app. Yes. Where all these people get. But it is jokes apart. The fact remains that all these people who receive these funds, Pradeep ji, consistently, if you notice, consistently have been attacking Mr. Modi. कहने का मतलब ये हुआ मोदी जी को गाली दीजिए और पैसे लीजिए, मतलब यही हो गया ना। मतलब in one way of looking at that, you in India over the past few decades have got one of the most reliable, consistent leader as a prime minister, and through him there has been very decisive decisions taken. That is what the BJP claims, and there is every attempt to destabilize him so that enemies of the country, every attempt to undermine him, destroy his reputation, accuse him of being anti-Muslim, and so on and so forth. Now, even the one question that he took at the lawns of the White House, that lady who's of Indian origin who works for the Wall Street Journal, she was talking to him. You know, lots and lots of other prime ministers have stood over here and talked about equality. I mean, have they ever asked Mr. Joe Biden about the number of black and colored people who have been unfairly killed in the United States? And the reporter's name, the BJP claims, was belonged to some community. Well, she is a Muslim. She was a Muslim. She was a Muslim. But all I'm saying is, all that they see is what? Islamophobia. I mean, this is like crazy, man. In fact, what you're doing is you're actually helping Modi by this. Very frankly, the more you're consolidating his traditional votes. आप ज़्यादा मोदी को, which is why I really absolutely admire Mr. शरद पवार. आप देखिए शरद पवार जी की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने क्या कहा, उनका मैं देखिए, Mr. Modi has been misinformed. The Congress and its allies have supported the women's reservation bill wholeheartedly. He has been misinformed. In fact, in 1994, when Mr. Sharad Pawar was the Congress Chief Minister of Maharashtra, please do remember, he had brought in the first women's policy where reservation was talked about for the first time for women right here in Maharashtra. In fact, if credit should be given for this reservation, for the origin of this 33% reservation in Parliament and in the Vidhan Sabha, it should go to Mr. Pawar. He was the first man to introduce such a legislation in any assembly anywhere in the country. So And then on top of it, when he was asked about Mr. Adani, he said that, listen, there was a businessman
from Baramati, whose new unit was being opened. So I went over there, and what's wrong with visiting an industrialist or a businessman? I mean that's what he said. So one must learn from Mr. Pawar the manner in which he talks and the maturity that he has displayed, including, for example, when he was asked about Canada, he said, "My stand is exactly what the government of India's stand is. I stand by the government of India. It's my government." And I think one must learn from them. Very, very mature leadership. Yes, and at the moment, which is why Mr. Pawar happens to be the glue which binds the India alliance together. Yes, yes. Now, at the moment with us, we have our old friend from the NCP, Mr. Nilesh Bhonsle. Nilesh Bhonsle, sir, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार सर, how are you, sir? How are you? All good sir. बड़े फ्रेश लग रहे हैं सर, बहुत फर्स्ट क्लास, बिल्कुल Fully charged up. बहुत So sweet of you. तो सर शरद पवार साहब, the maturity that he displayed again today, I mean we all know what he's capable of, absolutely brilliant. लेकिन सुप्रिया सुले जी ने ये कहा है कि भाई देखिए, जो इनविजिबल हैंड है, हिडन हैंड जो है भारतीय जनता पार्टी का, जो पार्टीज मराठियों ने शुरू करी, मराठी मानुस ने जो पार्टी शुरू करी, उन दोनों को उन्होंने तोड़ दिया, एक शिवसेना को और एक एनसीपी को. लेकिन आज जो अजीत दादा पवार ने कहा है, और अभी सुनने में यह आया है कि अजीत दादा पवार साहब के बंगले के ऊपर काफी बड़ी मीटिंग चल रही है ऑफ द ओल्ड एनसीपी स्टॉलवर्ट्स हु आर नाउ इन दिस गवर्नमेंट. तो क्या कुछ आपको खबर आ रही है कि कुछ देयर सम इंस्टेबिलिटी इन दिस गवर्नमेंट महाराष्ट्र की? 100% there is instability in the Maharashtra government at least. Hello, am I audible? You are absolutely audible, sir. We can see you, we can hear you. निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग सा बवाल मचा हुआ है. आज अगर अपना देखा होगा तो अजीत पवार जी जो कभी भी किसी भी कैबिनेट मीटिंग में आज तक की इतिहास में कभी जिन्होंने अनुपस्थिति नहीं लगाई, आज फर्स्ट टाइम वो अपने तबीयत का कारण बता के कैबिनेट मीटिंग से दूर रहने का उन्होंने तय किया. कारण भी बड़ा सादा और बड़ा स्पष्ट है कि जो अजीत पवार जी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक का बना दिया बीजेपी ने, राष्ट्रवादी स्प्लिट किए, राष्ट्रवादी से कुछ लोग तोड़ने के बाद में, लेकिन उन अजीत पवार जी के जो साथ में आए हुए मिनिस्टर्स हैं, उनको ना कोई डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है गार्डियन मिनिस्ट्री के तौर पे, ना उनके कोई काम किए जा रहे हैं. इससे राष्ट्रवादी की जो अजीत पवार का फैक्शन है उसमें भी एक बड़ा बवाल मचा हुआ है कि भाई यहाँ पे आके अगर इस प्रकार से इंसल्ट मिल रही होगी हमको मिनिस्टर बनने के बाद में, तो इससे अच्छा था कि हम लोग पवार साहब के साथ ही थे. अब ये हालत ऐसा हो गया है कि बीजेपी ने उनको ऐसे एक अलग से ट्रैप में पकड़ लिया, हनी ट्रैप में, जहाँ पे उनको अभी लाल दिए की गाड़ी या मिनिस्ट्री छूट नहीं पा रही है, और पवार साहब के पास आने का और स्वाभिमान से जीने का जो उनके पास चांस था वो छोड़ना नहीं चाहते. तो एक अलग ही ट्रैप में फंस गए और बड़ा इंसल्टिव फील कर रहे हैं वहां पे कि रोज रोज की यहाँ पे बीजेपी और शिंदेगढ़ की बदनामी से अच्छा था कि हम लोग पवार साहब के साथ में खड़े होकर संघर्ष करते थे, लेकिन अभी शायद उन्होंने मौका खो दिया है, इसलिए परेशान दिख रहे जी. लेकिन आपको लगता है कि वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो ऐसा लगता है, नोइंग शरद पवार साहब, बहुत बड़ा दिल है उनका, अगर आज सब ये लोग आकर के माफी मांग लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार साहब मना करेंगे. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है. पवार साहब एक ऊंचे कद के नेता है, उनको हमसे बहुत ज्यादा इस विषय में अनुभव है, इस विषय का ज्ञान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये फैसला उनका होगा. लेकिन आज जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है राजनीति का, तो उसमें एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि 9 लोग जो मिनिस्टर बने हैं केवल वही लोग खुश है, बाकी के जो एमएलए थे जो उनके पीछे कुछ ना कुछ सत्ता में जाएगी तो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ हमको भी मिल जाएगा, शायद महामंडल मिल जाएगा, कोई मंत्रिमंडल मिल जाएगा, ऐसी सोच भावना से जो बाकी 25-30 लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं वो स्वाभिमानी लोग हैं. और निश्चित रूप से उनके दिल में कहीं ना कहीं दर्द है कि यार पवार साहब जैसे संघर्ष योद्धा स्वाभिमानी नेता को छोड़ के अब जब हम बीजेपी के साथ आए तो रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात, जो हाथ में था वो भी निकलते जा रहा है. वोटर्स जो हमारे साथ थे आज वो वोटर भी हमको रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है. जी जरूर. आने वाले चुनाव में शायद हारने का समय आ जाए, तो ऐसे कंफ्यूजन स्टेट ऑफ हारने का समय तो आ गया है. जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिल रही हैं, हमारे खुद के जो संवाददाता बता रहे हैं अलग अलग जगह से, शायद अजीत दादा पवार को छोड़ के या 1-2 और लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों की स्थिति जो है बहुत डामाडोल है. इनफैक्ट अजीत दादा पवार जो बारामती से आते हैं, वहां पर मतलब चुनाव जीते हैं,
अगर शरद पवार जी ने ये ठान लिया कि मैं खुद वहाँ पे कैंपेन करूंगा तो अजीत दादा पवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, मुझे नहीं लगता जीत पाएंगे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन सर ये बताएं क्या, मैं ये मुझे याद है जब ये स्प्लिट हुआ तो शरद पवार जी जो शुरू से आज तक बोल रहे हैं, प्रदीप जी सुनने वाली बात, शुरू से आज तक जो बोल रहे हैं, मतलब आई interviewed him first when he came to Delhi as the defense minister, and then of course I've interviewed him so many times when I came to Mumbai and when he was chief minister. In fact, by the way, Nilesh Chauhan sahab, Nilesh Bhonsle sahab, for the first time, it is Mr. Sharad Pawar who introduced me to Mother Teresa, by the way. उनके ऑफिस में बैठी थी, मुझे जान के बुलाया उन्होंने मुझे, तो वो भी एक अलग से कहानी है। तो शरद पवार साहब was very kind enough and generous enough to introduce me to Saint Teresa now, of course, Saint Teresa of Calcutta. But what he used to say and what he still says is, भाई पत्थर अपनी जगह भारी है, एक बार पत्थर को लुढ़का दो अपनी जगह से तो फिर वो लुढ़कता रहता है। आपको लगता है कि अजीत दादा पवार और उनका गुट जो है अब लुढ़क रहा है एक हिले हुए पत्थर की तरह? नीरज साहब, अजीत दादा का ग्रुप पहले से ही लुढ़का हुआ था, उनको ताकत भरने का या उनमें जोश भरने का काम ही सिर्फ पवार साहब करते थे जी। और आज जब मालूम पड़ रहा है कि भाई हमारा जो मेंटर था, जो हमें हवा भर के लोगों के बीच में हमको पत्थर को भगवान बनाने का काम कर रहा था, आज वो लीडर जब हमारे पीछे से हट गया तो निश्चित रूप से डर है, दहशत है और लोगों में कौन से मुंह से जाए, ये भी उनके सामने एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से खड़ा हो गया है जी। यदि आप पवार साहब की लीडरशिप देखेंगे तो पवार साहब ने किसी का कद छोटा करके अपना कद बड़ा नहीं किया। पवार साहब ने छोटे छोटे लोगों को बड़ा करके अपना कद बड़ा किया। पवार साहब हैज क्रिएटेड लीडर्स, दैट्स व्हाई ही इज लीडर ऑफ लीडर्स। पवार साहब का एक अलग स्टैंडर्ड। Bose साहब, Supriya Sule ji has been very attacking in the last few days. Before that, देवेंद्र फडणवीस ने कल जिस प्रकार से कहा कि सरकार कुछ भी हो, बीजेपी इज द बिग ब्रदर और बीजेपी बीइंग द बिग ब्रदर will remain and all the powers of big brother rest with the बीजेपी, इनका indirectly देव फडणवीस जी का वो कहना था। सुप्रिया सुले जी ने क्लियर कट कहा कि ट्रिपल इंजन में एक इंजन खराब है, अनहैप्पी है, साथ में नहीं चल रहा है। आगे जाके बोला कि 3 महीने से ये ट्रिपल इंजन सरकार ने महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया, सुप्रिया सुले जी का कहना था। इनफैक्ट शी इज सेइंग दैट यू प्लीज टेल मी व्हाट गुड हैज दिस ट्रिपल इंजन सरकार डन इन द लास्ट 3 मंथ्स। और उसके बाद जो घटना हो गई नांदेड़ में, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि दिस इज खूनी सरकार, ये खूनी सरकार है, एब्सोल्युटली खूनी सरकार है, एंड शी डिमांडेड द रेसिग्नेशन of the health minister, but I think nobody is complying. भोसले साहब, 100% ये सरकार हर स्थिति में हर जगह पे फेलियर ही है। अगर आपने महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले अगर देखा होगा तो एक मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए कुछ लोगों ने वहां पे अनशन चालू किया, हंगर स्ट्राइक चालू किया। एकदम सीधे साधे शांत तरीके से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोगों को जानवरों जैसा पीट के वहां से भगाने का काम किया। होम मिनिस्ट्री वहां पे फेल दिखी। साथ ही में अगर आप देखोगे हमारे महाराष्ट्र राज्य के चीफ मिनिस्टर महोदय जो ठाना डिस्ट्रिक्ट से आते, उनके ठाना डिस्ट्रिक्ट में एक ही रात में लगभग 11 से 12 बच्चों की, 11 से 12 पेशेंट्स की मौत हो जाती है। चीफ मिनिस्ट्री के डिस्ट्रिक्ट का आलम बता रहा हूँ। और कल परसों की घटना है जो आपने अभी मुझे यहाँ पे बताई कि यहाँ पे नांदेड़ में 24 घंटे में 24 और पिछले अंदाजन 36 घंटे में 40 घंटे में 32 लोग एक्सपायर हो गए, ऐसी हम तक खबर है। अभी तक ऑफिशियल उसका आंकड़ा सामने नहीं आया है, इसलिए अभी यहाँ पे आपके सामने बोलना उचित नहीं रहेगा। लेकिन what do you think happened there? No, hold it a minute, sir. What do you think happened there? Because this has never happened in Maharashtra before. महाराष्ट्र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या हुआ है? मतलब वो वहाँ पे बता रहे हैं कि मेडिसिन भी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लोग वहाँ पर दे नॉट एंड सम पेशेंट्स, बाय द वे प्रदीप जी, नीलेश साहब, दे हैव एक्चुअली डाइड ऑफ स्नेक बाइट, स्नेक्स इन द हॉस्पिटल। नीलेश जी, निश्चित रूप से कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र सरकार के जो मिनिस्टर्स है, सारे मिनिस्टर, में हेल्थ मिनिस्ट्री की सिर्फ बात नहीं करूंगा, हेल्थ एक पोर्टफोलियो रहता है, लेकिन सभी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बाकी सब मिनिस्टर, कैबिनेट का पूरा ग्रुप ये सब चीज के लिए जिम्मेदार रहता है। क्योंकि कोई भी चीज अगर एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आप लोग को मिनिस्टर बनाए उसलिए कि आप लोग वहां पे जाओ
और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं सीधे तरीके से डायरेक्शन दो, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक से जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव जो मिनिस्टर बन के आज कुर्सियों में बैठे हैं, मंत्रालय की एसी में बैठे हैं, वो कुर्सियों से वहां उठ के मंत्रालय के कैबिन के बाहर जाने का उनका इच्छा ही नहीं है। उनको सिर्फ परसेंटेज में इंटरेस्ट है, लोगों का काम के नाम पे कैसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर से हम लोग बात करें, कॉन्ट्रैक्टर से कैसे कुछ जमावड़ा करे और आने वाले चुनाव के लिए हम लोग सामने जाए, सिर्फ इनका इतना ही एजेंडा बच गया है। इसी के लिए दुर्भाग्य से एक 24 घंटे में नांदेड़ में 24 लोगों की मौत हो जाती है और ठाणा जैसे चीफ मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 12-12 लोग एक ही रात में मर जाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। So you're saying आप कहते हैं कि not only health minister but the entire cabinet is responsible. भोसले साहब का कहना वो है 100% entire cabinet ministry is responsible for this। उसका कारण ही ये रहता है कि मिनिस्ट्री जब हम लोग बनाते हैं, राज्यपाल महोदय जब चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्रियों को शपथ देते तो मंत्रियों के नाते शपथ देते हैं, हेल्थ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर के नाते नहीं देते। उसके बाद में सिर्फ पोर्टफोलियो उनको अलॉट किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो पोर्टफोलियो जिनके पास है वो मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन बाकी मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? बॉस ठीक है, एक आध बंदा अगर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो ये एक गधा है तो हम लोग सब गधे, ऐसा तो बात उसमें कुछ होता नहीं ना। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी चीज है आपके पास, तो वहां पे जाके वहां की जो भी हेल्थ की इश्यूज रहेंगे, एजुकेशन की इश्यूज रहेंगे, वहां पे आपको विजिट्स करना चाहिए। वहां के लोगों की अगर कुछ समस्या है तो उस पर बात करना चाहिए। लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड कहाँ पे हो? आप लोग इंटरेस्टेड हो कॉन्ट्रैक्टर से परसेंटेज लेने के लिए। हम लोग बोल रहे हैं कि यार बेरोजगारों को रोजगार दो, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हो। सरकार कॉन्ट्रैक्ट के लेबर पे कैसे चल सकती है भाई? जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो तो निश्चित रूप से आपको सरकार में रहने का, मंत्री कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र की जनता पे एक एहसान करना चाहिए, एकनाथ शिंदे साहब और उनके सारे मिनिस्टर ने अपने अपने इस्तीफा देके घर पे बैठ जाना चाहिए। 2 दिन पहले भोसले साहब जस्ट 2 days बैक धनंजय मुंडे जी बोल रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा अजित पवार जी है, ये पार्टी, ये सिंबल, ये पूरे अजित पवार जी को मिलेगा, हमारे फैक्शन असली राष्ट्रवादी का फैक्शन है। वो सेम थिंग वाज एकोड बाय प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी ने आगे जाके डेट भी बोला, इस डेट में जो निर्णय आएगा उसका आलोचना सुप्रिया सुले जी ने बहुत किया कि प्रफुल्ल पटेल जी को डेट कैसे मालूम है। ये लोग उन्होंने कहा कि एक लोकतंत्र का एक जो विश्वास है उसमें वो घटता जा रहा है, बिकॉज पीपल आर अनाउंसिंग द डेट्स व्हेन द फेवरेबल वर्डिक्ट विल कम इन फेवर ऑफ अजित पवार। तो ये जिस प्रकार धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल ये सब कह रहे हैं कि अजित पवार हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाउ डू यू सी ये आने वाले दिन में कैसे आपको दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे? भोसले साहब देखिए, जब शिवसेना की स्प्लिट हुई थी और एकनाथ शिंदे जी बाहर आए थे, सेम डायलॉग, सेम लाइन, सेम टाइम पे बातचीत करना, ये स्क्रिप्ट पूरा बीजेपी ने बना के दिया है। सेम स्क्रिप्ट को रिपीटेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को कुछ खास लगता नहीं बॉस। हम लोग को पूरा विश्वास ये वही स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट देने वाला उनका स्टोरी राइटर भी, या जो राइटिंग करते हैं वो बंदा भी वही है, उनका लेखक भी वही है, आदेश देने वाला आदमी भी वही है। और शायद कल को अगर चुनाव निर्वाचन आयोग में कोई डिसीजन हमारे अच्छे या बुरे साइड से आता है तो हमको लगता है शायद वो ऑर्डर देने वाले या जो अदृश्य हाथ जिसे कहते हैं वो अदृश्य हाथ भी वही रहेंगे। एक बहुत बड़ा चीज है कि पवार साहब खुद बोल रहे हैं कि देयर इज नो स्प्लिट इन द पार्टी। सुप्रिया सुले जी बोल रहे देयर इज नो स्प्लिट इन द पार्टी, बट दीज पीपल आर सेइंग दैट हमने पवार साहब को, शरद पवार साहब को निकाल दिया जिस प्रकार से। तो ये है क्या? व्हेन यू आर सेइंग दैट देयर इज नो स्प्लिट इन द पार्टी एंड देन अदर फैक्शन सेज देयर इज अ स्प्लिट एंड वी आर टोटल मेजॉरिटी, और जितने इनफैक्ट देयर सेइंग जो नॉर्थ ईस्ट से एमएलएस भी आए वो भी हमारे साथ है, वी हैव जितने जिला प्रमुख है वो सब हमारे साथ है, तो इट विल कम। तो ये स्ट्रेटेजी आपका क्या है कि देयर इज नो स्प्लिट इन द पार्टी? भोसले साहब देखिए, पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं से बनती है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने मिलके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ी ताकत से खड़ी की है। हमारी पार्टी एक कॉन्स्टिट्यूशन पे चलती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, और आप लोगों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो इलेक्शन कमीशन की उस पर भी वो मौजूद है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ प्रोविजन है जिसके कारण ये पार्टी पवार साहब के साथ में खड़ी होती है। अगर एमएलए चले जाए, एमपी चले जाए, या आने वाले इलेक्शन में शायद हमारे एमपी 0 रहे,
तो भी ये पार्टी पवार साहब के साथ ही रहेगी। और सेम लाइन में अजीत पवार जी ने भी इसके पहले एक बार इसी को प्रॉपरली डिफाइन किया था, राज ठाकरे जी करके एक महाराष्ट्र में नेता है, उनकी पार्टी का एग्जाम्पल देके कि उनके पार्टी में सिर्फ एक ही एमएलए है, इनकेस अगर वो कभी पार्टी स्प्लिट होके वो बोलता है कि मैं अलग से चला गया, तो क्या पार्टी उनको दे देंगे या राज ठाकरे के साथ रहेगी? तो अजीत पवार जी ने इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया था कि ऐसे कंडीशन में कभी चुने हुए सदस्य लोकसभा विधानसभा के यदि भाग जाते, पार्टी छोड़ के चले जाते, तो भी पार्टी कार्यकर्ताओं की नेता के साथ खड़ी रहती है। तो अजीत पवार ने जो वो उस समय पे हम लोग को बताया था, आज भी हम लोग उस चीज पे कायम है। पवार साहब के साथ पार्टी रहेगी। पवार साहब ने इस पार्टी को निर्माण किया था कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद में, और पवार साहब ही अध्यक्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। आने वाले 6 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन अपना रिजल्ट देगी, तो भी हमको विश्वास है कि अगर अदृश्य हाथ वहां पे न आए तो यह पार्टी पवार साहब के साथ ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे नीलेश साहब, जैसा आप बोल रहे हैं, और दर्शकों के लिए ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे न जाने कितनी मर्तबा हो चुकी है यहीं पर इसी शो के दौरान, कि देखिए साहब डिफरेंस है, हु मेक्स अ पार्टी? इट इज द वर्कर्स हु मेक अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इज मेड फ्रॉम वर्कर्स एंड अदर पीपल हु हैव बिकम मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। जो एमएलएज हैं उनसे पार्टी नहीं बनती है। ये क्या है? ये तो क्या अजीबो गरीब लॉजिक है कि यार 10 एमएलए, 20 एमएलए, 50 एमएलए, 40 एमएलए, उनकी क्या पार्टी हो गई? नीरज साहब, ये नया लॉजिक कहां से आ गया है? मतलब मेरी समझ के बाहर है कि ये क्या है? देखिए, पार्टी बनाने के लिए कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसमें से एक लीडरशिप होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप पवार साहब है। सेकंड, एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। पवार साहब ने हमको आइडियोलॉजिकली प्रिपेयर किया कि हम लोग राइट विंग के अगेंस्ट है, हम देश की उन्नति के लिए राइट विंग के अगेंस्ट है। हम किसी जाति मजहब को नहीं मानते, हम किसी विचारधारा को नहीं मानते जो जाति मजहब का प्रोपोगेंडा करती है। हम सेक्युलरिज्म को आगे लेके चलने वाले लोगों में से। तो जब हमारी नीति ये है और उस नीति के विरोध में अगर कुछ हमारे साथी अगर दूर जाते हमसे, तो इसका मतलब पार्टी की आइडियोलॉजी अचानक से बदल गई क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलरिज्म को ही अपनाएंगे, सेक्युलरिज्म के ही साथ में रहेंगे, और अगर उस नीति के विरोध में कोई ज्यादा, तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई अजीत दादा पे पार्टी ने की, सुनील तटकरे साहब पे पार्टी ने की, वही कार्रवाई बाकी लोगों पे भी हो रही है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि बार बार कि आइडियोलॉजी के साथ में जो खड़े होते हैं, उस विचारधारा के साथ जब अनेक कार्यकर्ता जुड़ते हैं, तो इस अनेक कार्यकर्ता के समूह को हम पार्टी कहते हैं, जो पवार साहब के नेतृत्व में या किसी भी लीडर के नेतृत्व में चलती है। तो नेतृत्व हमारा पवार साहब है, आइडियोलॉजी हमारी सेक्युलरिज्म है, और पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। इसलिए पार्टी पवार साहब के साथ और पवार साहब के साथ में चले। और नीलेश जी, जहां तक के इंडिया अलायंस का प्रश्न है, आज की तारीख में आपके पास आने के पहले जो मेरा और प्रदीप जी का जो डिस्कशन चल रहा था वो ये था कि शरद पवार जी वो ग्लू है, वो गोंद है, जिसकी वजह से, वो फेविकॉल का जोड़ है जिसकी वजह से इंडिया अलायंस इकट्ठी है अभी। बिकॉज इट इज हिज मेच्योरिटी एंड हिज बैलेंस एंड हिज वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स दैट हैज ब्रॉट दिस इंडिया अलायंस टुगेदर। कि जहाँ पर आप स्टेट लेवल के ऊपर भले ही आपके बीच में डिफरेंसेस हों, लेकिन नेशनल लेवल पर आप बीजेपी के साथ आप अकेले, मतलब इकट्ठे लड़ेंगे। आपको लगता है कि आगे चलकर भी अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में जब भी चुनाव होते हैं, ये इंडिया अलायंस वैसी की वैसी कायम रहेगी? नीलेश साहब, निश्चित रूप से देखिए, इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन का कारण ही क्या था कि देश के विरोध में देश की अगर सत्ताधारी पार्टियां कुछ नीतियां बना रही है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। देश करोड़ों लोगों से बनता है, और एक करोड़ों लोगों का रक्षण करना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ये लीडर्स का काम है। फिर वो ऑपोजिशन में हो या सत्ताधारी में हो, अगर सत्ताधारी नहीं कर पा रहे तो ऑपोजिशन को इकट्ठा आके ऐसे जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको नीचे लेके अपने हाथ में पूरी सत्ता की वागडोर लेके लोगों को न्याय देना हमारा कर्तव्य है। ये पवार साहब ने जब समझाया लोगों को, तब जाके सब लोग एक साथ आए हैं। और निश्चित रूप से इंडिया अलायंस में कोई भी क्या बोलते आपसी मतभेद स्टेट लेवल्स पे हो सकते हैं शायद, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो कोई भी देश के छोटी सी भी नुकसान हो हमारे कारण से, ऐसा नहीं चाहता है। और इसीलिए अच्छी विचारधारा के साथ में ना हम लोगों में कोई कंपटीशन है कि भाई पीएम ये बनेगा वो बनेगा,
नेता ये बनेगा, नेता वो बनेगा, कोई जरूरत नहीं। हम सब कन्वेनर की तौर पे काम करेंगे, संयोजक की तौर पे काम करेंगे, लोगों को साथ लेंगे, मैक्सिमम लोगों तक जाएंगे। देश की नीतियों को अच्छे से कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, हर देशवासियों को कैसे न्याय देने का काम कर सकते हैं, देश की मूल समस्याओं पे कैसा काम कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए जी। इंडिया अलायंस और भी ताकत से खड़ी हो रही है। You know, Nilesh sir, Bhosle one sir, second, just उदाहरण one, के तौर पे one बताना question. चाहूंगा मैं। One question, just leading up from this only. नीलेश साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के गरीब गुरबा जो लोग हैं, गरीब लोग जो हैं, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, क्या उनको न्याय मिल रहा है, क्या उनको इंसाफ मिल रहा है अभी इस सरकार की हुकूमत में? एक एग्जांपल से बताऊंगा सर, जो आपने पहले एक अपने शो की शुरुआत में बोला था, अगर 24 घंटे में 24 लोग की मौत हो रही है जी, तो कौन सी न्याय की अपेक्षा करेंगे साहब हम मुंबई में बैठ के, महाराष्ट्र में बैठ के? निश्चित रूप से महाराष्ट्र का नागरिक बेहद परेशान है। बारिश नहीं हो रही है, बारिश डिले होती जा रही है, किसान परेशान है। जो 60-70% के आसपास यहाँ पे वर्ग है, किसानी करता है, वो परेशान है। अगर फसल ही नहीं उगेगी तो भाई हम लोग दिवाली में क्या करेंगे? हमारे घर में जब बच्चे वापस तो लौट के आएंगे तो अनाज के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग? अलग अलग छोटी छोटी समस्या में जब अनाज नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से मार्केट का कंडीशन महाराष्ट्र में खराब होते जा रहा है। आप बड़े पैमाने पे रोजगार पे निर्भर हो जाते हैं जब आपका फार्मिंग सेक्टर कमजोर हो जाता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कमजोर हो जाता है। अगर आप नौकरियों के सेक्टर की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट में पिछले 9-10 साल से भर्तियां नहीं है, या जिस प्रकार से वैकेंसीज क्रिएट होके बाद में उस पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगारी का प्रमाण यहाँ पे घटता जा रहा है दिन ब दिन। सरकार को इतने लोग रिटायर होने के बाद में नए लोग भर्ती होने बहुत जरूरी थे, सरकार वो काम नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है? कुछ अपने सगे वालों को खुश करने के लिए या कुछ कंपनी से टाई अप करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश कर रही है। ठेकेदारी पे सरकार कभी नहीं चलती है, और अगर चलाने जाओगे तो हर 3 महीने में लॉकडाउन हमको वो अमेरिका स्टाइल में करना पड़ेगा। भोसले साहब, आपके सामने एक नया कंट्रोवर्सी जो सुधीर मुनगंटीवार लेके चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। बोले वाघनाग लेके आ रहे हैं लंदन से वाघनाग लेके आएंगे। ये वाघनाग शायद वही है, बीजेपी का कहना है कि जो अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। पूरे सिस्टम लॉन्च है, पूरे महाराष्ट्र का दौरा, हर चीज वापस लेके आके घूमना फिरना। आपके घटक दल आदित्य ठाकरे जी ने आलोचना किया कि पहले इसका साइंटिफिक असेसमेंट कर लो कि क्या महाराज के ही वाघनाग है। व्हाट इज द एनसीपी स्टैंड, भोसले साहब? व्हाट इज द एनसीपी स्टैंड अबाउट दिस वाघनाग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम लंदन? निश्चित रूप से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो यूज किया है, ऐसा उनका कहना है, तो उनको उसके सारे प्रूफ्स देने चाहिए। जो आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं, हम उस बात से सहमत हैं। यदि जिन्होंने वो वाघनक या जिसको एक वो अच्छा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके माध्यम से अफजल खान का पेट फाड़ा था शिवाजी महाराज ने, कोठड़ा बाहर काढलेला, ऐसा हम लोग मराठी में बोलते हैं उसको। जब लेके आ रहे हैं तो उसका प्रूफ दे दो। और जब जिसने दिया था ये वाघनक वहां पे रखा था जिन्होंने लंदन में, वो जब कह रहे हैं कि भाई ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं है, ये हमारा है, जो उनका लिखा हुआ भी आप नहीं मान रहे हो और अब सिर्फ अपनी बात बताने के लिए, प्रोपोगेंडा करने के लिए ला रहे हो, तो इट इज वेरी शेमफुल। और वो भी सिर्फ 3 साल के लिए नाम पे सर, ओनली फॉर 3 इयर्स। जी 100% सर, यही बात का बुरा लग रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्तिमत्व के नाम पे आप इतनी चीप पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हो। वेरी बैड इट इज। भोसले साहब, आपका दूसरा जो मोदी साहब जो गर्व कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बोले कि ये एक जबरदस्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक हिस्टोरिकल डिसीजन है जो बिल पास हुआ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। लोग सिर्फ सोच रहे थे 27 साल से, मोदी साहब का कहना है हमने 2 दिन में उसको पूरा कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। चाहे वो लोकसभा में पासिंग है, राज्यसभा में 2 दिन में हम लोग क्लियर कर दिया। नाउ ही इज कॉलिंग दिस मैसिव हिस्टोरिकल, जो इंडियन डेमोक्रेसी में एक एम्पावरमेंट का ग्रेटेस्ट एग्जांपल। हाउ डू यू सी भोसले साहब, इसको कैसे देख रहे हो? और मोदी साहब ये भी बोल रहे हैं इसको हम वोट बैंक के हिसाब से नहीं देख रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म्स में इंडिया नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं मोदी साहब। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और हमारे सारे भारतीय नेता, जो वो समय के भारतीय नेता थे, सब मिलके जब पार्लियामेंट में गए थे
पार्लियामेंट को टेक ओवर किया था, तो उन्होंने पहला कोई काम किया था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, देश का संविधान बनाया, देश की आयन बनाई, और देश को एक डिसिप्लिन फॉर्म में हम लोग कैसे चला सकते हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया। ये हमारा इतिहास है कि पहले दिन हमने क्या किया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मोदी जी ने जब नया पार्लियामेंट बनाया, उसमें उन्होंने पहला काम कौन सा किया, तो उन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने का काम किया। इसके लिए हम बहुत खुश है कि अच्छा काम है, लेकिन हमको इससे ज्यादा खुशी कब होती जब वो पार्लियामेंट में वुमेन बिल आने के बाद में आप उसी दिन से उसको लागू कर देते। आपको किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, हर पार्टी ने कहा कि आपने वुमेन बिल जो लाया है बहुत अच्छा है, इसके साथ में और भी कुछ अच्छे बिल्स ला सकते थे, या इसमें कुछ और भी अमेंडमेंट करनी चाहिए कर सकते थे, लेकिन आपने जो लाया अच्छा है, वी आर सपोर्टिंग इट। राष्ट्रवादी ने वुमेन बिल सपोर्ट किया सुप्रिया ताई के माध्यम से। हर अलग अलग पार्टी ने किया, हमारी इंडिया अलायंस ने तो पूरी तरीके से किया। सोनिया गांधी जी रहेगी, हमारे डीएमके की कनी मोदी जी रहेगी, सुप्रिया ताई रहेगी, डिम्पल यादव जी रहेगी जो अखिलेश यादव जी की वाइफ है, मतलब सभी पार्टियों ने मिलकर उसको सपोर्ट किया। लेकिन हम क्या चाहते थे कि जब ये पार्लियामेंट में नई बिल्डिंग में आप कोई फर्स्ट टाइम कोई लॉ ला रहे हो, तो उसको उसी दिन वो 1 या 2 दिन में पास होने के बाद तभी से उसको पूरे देश में लागू कर देना चाहिए था। लेकिन आप लागू कब से कर रहे हो, आप कहते हो कि हम इसके बाद में सेंसस करेंगे, सेंसस करने के बाद में जब उसका एक्चुअल नंबर आएगा तब जाके हम उसको वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हम लोग वहां पे लागू करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पार्लियामेंट में पहले दिन जो बिल लाया वो भी फेक बिल लाया, कानून बना लेकिन उसका फायदा किसी को नहीं होगा क्योंकि सेंसस नहीं है। तो आप जब झूठ की बुनियाद पे देश को चलाने का काम कर रहे हो मोदी जी, उस बात से हम लोग खफा है। आपका हमारा कोई पर्सनल विवाद नहीं है, लेकिन आप झूठ की बुनियाद पे जो इमारतें बनाते जा रहे हो और एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो कि हम लोग लोगों को फंसा फंसा के कुछ ना कुछ जुमले दे दे के वुमेन बिल्स के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी 15 लाख के नाम पे, ये ऐसे अलग अलग खेल कर करके जब लाओगे तो वो देश सही तरीके से नहीं फ्यूचर में चलता। ये मोदी जी को और बीजेपी को अभी बंद करना पड़ेगा। लेकिन नीलेश भोसले साहब, यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि बिल के पास होने के बाद, क्योंकि हम लोग सब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहे थे, हर एक ने उसको सपोर्ट किया सर इन बोथ हाउसेस। बाय द वे इट क्रिएटेड हिस्ट्री। राज्यसभा में यूनैनिमसली 100% इस बिल को समर्थन मिला। लोकसभा में 2 लोगों को छोड़ करके, आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े अच्छे मित्र असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके एमपी इम्तियाज जलील साहब, उन दोनों को छोड़ करके बाकी सब लोगों ने इसको सपोर्ट किया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि उसके बाद आप मध्य प्रदेश में मोदी जी की स्पीचेस सुनिए, भाषण सुनिए, छत्तीसगढ़ में सुनिए, अभी राजस्थान में सुनिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने और बाकी सब लोगों ने दिल से नहीं किया है, खिलाफ थे, ये अंदर से खिलाफ है इस बिल के, दिल से नहीं किया है, ये जबरन किया गया है। I think that is being unfair because as Mr. Pawar said today, Mr. Modi, you have been misinformed. All of us have supported the bill wholeheartedly. तो मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? That seems to be very unfair. भोसले साहब, हो सकता है उनको कोई गलत इंफॉर्मेशन रोज प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक मूवी आई थी पीके, पीके में जैसे कहते हैं रॉन्ग नंबर है, जैसे मोदी जी का नंबर कहीं रॉन्ग नंबर लग रहा है और उनको शायद कोई गलत इन्फॉर्म कर रहा है। लेकिन मोदी जी को एक चीज समझने में, मोदी जी को हम आपके माध्यम से एक चीज विनती करना चाहेंगे कि मोदी जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी पार्टी ने इसका विरोध किया है तो उनका मुंह बंद करने के लिए कम से कम आप डेयरिंग करके और ही डिसीजन लीजिए और कल के कल ये महिला कानून पूरे देश में लागू करा दीजिए, ताकि उन सब के मुंह बंद हो जाए और हम सब के मुंह पे एक करारा तमाचा मिले और महिला हमारी जितनी भी बहनें उनको कम से कम न्याय देने का काम करें। And he must, and he should have acknowledged Mr. Pawar, because I remember in 1994, Sharad Pawar sahab brought in the women's policy, as a result of which, for the first time, women's reservation actually became a reality. In local bodies still, yes. Yes, I mean, this is, I think this is being very petty-minded, very frankly speaking. But 33% पहला रिजर्वेशन यदि किसी ने दिया होगा तो पवार साहब ने महाराष्ट्र में दिया वो पॉलिसी लाके, उसके बाद में 33% को बढ़ा के 50% करने का काम भी यदि किसी ने किया होगा तो महाराष्ट्र ने किया और वो पवार साहब के नेतृत्व में किया। तो पवार साहब जो बोलते हैं या जो सोचते हैं वो काम करके दिखाते हैं, ऐसे ही फेक किसी को कुछ बोलते नहीं। और मोदी जी को बहनों की तरफ से अगर इतना, बहनों के प्रति इतना आदर है
तो मोदी जी शायद मणिपुर के विषय पे इतने देर शांत नहीं रहे। जी अभी भी साइलेंट हैं सर वहाँ पर। 150 दिन अभी आप भी लोग बिना किसी अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बड़ी बोल बात है सर, यूरोपियन पार्लियामेंट्स में डिस्कशन होता है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट के जो चीफ है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो ना कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है, ना कोई कुछ बात करने के लिए तैयार है। अपने पूरे 1.5 घंटे के भाषण में केवल वो आधा मिनट 1 मिनट मणिपुर पे बात करते और चुप हो जाते हैं। सर 2 घंटा 20 मिनट रिकॉर्ड था सर, 1.5 घंटा नहीं था, 2 जी, घंटा जी। 20 मिनट सर। He created a record. Sorry, sir. longest याद नहीं। longest speech, sir, longest speech by any prime minister in the Lok Sabha. और वीरेंद्र सिंह छोड़ साहब के। जो मुख्यमंत्री है वहाँ के, अभी भी विराजमान है, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो I find it's very disheartening. इनका क्या है सर, जी। एक वो कहना है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये उसी एजेंडा को चलाते हैं। जी। ढोर माने, ये ढोल माने पीटने वाला ढोल जो बजाते हैं हम जी, लोग। ढोल गवार, गवार ढोल शूद्र गवार पशुनारी, सही, ये सभी ताड़ना के अधिकारी, करेक्ट। सकल ताड़न के अधिकारी। जी, तुलसीदास ये जी जो की इनके दिमाग में RSS ने तुलसीदास भर जी दिया। की चौपाई है सुंदरकांड से। जी जी सर, तुलसीदास जी ने कहा, आरएसएस ने अपने दिमाग में भर दिया और मोदी जी को रोज शायद सिखा रहे ये लोग। आजकल सुंदरकांड में ये पढ़ते नहीं, जब सुंदरकांड का पाठ होता है ना, तो ये वाला दोहा जो है ये पढ़ते नहीं है वैसे भाई, ये भी बता दूं आपको, ज्यादातर ये नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव इवॉल्व्ड, हम लोग इवॉल्व हो चुके हैं सर, ये टाइम्स हैव चेंज्ड। चलते चलते दुख उसी बात का, सिर्फ आप और हम इवॉल्व हो चुके हैं सर, ये लोग नहीं होना चाहते, ये अभी भी वही पे है। तो चलते चलते आपको लगता है अजीत दादा पवार साहब वापस आएंगे सर? अजीत पवार जी एक अच्छे कद के नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी उनको जिस प्रकार से बीजेपी ने घेर रखा है, मुझे नहीं लगता वो वापस आने की कगार पे है। लेकिन निश्चित रूप से हर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि अजीत दादा पवार साहब के साथ में फिर से जुड़ जाए। भले कुछ गद्दारों ने अजीत दादा को बहकाया होगा, हम अजीत दादा के बारे में कभी भी अपने दिल में कोई गलत राय या दो राय नहीं रखते हुए। तो अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है, छगन भुजबल जी भी वहीं पे हैं, सुनील तटकरे जी भी वहीं पे हैं, दिलीप वलसे पाटिल जी भी वहीं पर हैं, बंगले पर मीटिंग चल रही है अजीत दादा पवार के। तो शायद कोई निर्णय लेंगे, क्या निर्णय लेते हैं मालूम नहीं, क्योंकि अभी जब बारामती में थे नीलेश भोसले साहब, अभी जब बारामती में थे तो उन्होंने ये कहा था, देखो अभी मेरे पास फाइनेंस है, पोर्टफोलियो, ये कब तक रहेगा मुझे मालूम नहीं है, तो जितना फायदा मुझसे ले सकते हो ले लो। बारामती बैंक की जो मीटिंग थी उसके दौरान बोला था उन्होंने। और उसे देव फडणवीस जी की जो पोस्टरिंग था कि वी आर द एल्डर ब्रदर, वी आर द बिग ब्रदर, यू नो, दैट इटसेल्फ शोज दैट समथिंग इज नॉट राइट, नथिंग इज राइट करंटली द गर्ल। नहीं, वो भोसले साहब ने बोला, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एवरीबडी इज फीलिंग काइंड ऑफ निग्लेक्टेड, ये जितने लोग जो आए थे। और शिंदे जी भी जिस प्रकार से आज बोल रहे थे कि अजीत दादा की तबीयत बहुत खराब है, अजीत दादा इसलिए नहीं आ पा रहे, इसको आप गलत नजरिए से मत देखिए, और आप खुद बोले कि अजीत दादा आज तक कोई एक कैबिनेट मीटिंग कभी पॉलिटिकल हिस्ट्री में मिस नहीं किया है। Sir, Pradeep ji is well enough to hold a meeting in his house. Yes. He is not well enough to, go to the cabinet meeting. So, do you think they'll come back? Nilesh Bhosle साहब। अजीत दादा अगर अकेले ऐसा डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी उनके पार्टी के नेताओं से बात करनी पड़ेगी, उनके लोगों से बात करनी पड़ेगी। पार्टी तो एक ही है सर, पार्टी तो एक ही है ना, उनके साथ में जो आज लोग घूम रहे हैं और उनको बहका के बता रहे कि भाई पार्टी तो आपकी अपनी है, वो कुछ गुमराह करने वाले लोगों को अजीत दादा को साइड करना पड़ेगा और पवार साहब से बात करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक बड़े कद के नेता हैं, आपस में पवार साहब और अजीत दादा ही डिस्कशन करें तो देख सकते हैं हम। मैंने सुना है कि इसमें एक बलि का बकरा बनने वाला है, उसका नाम शायद क्या नाम है मुंडे साहब के, जो धनंजय मुंडे साहब जो हैं, वो शायद he might be left behind, लग ऐसा रहा है। Just speculation. Maybe. बहुत मुश्किल है, दिलीप वलसे पाटिल दिग्गज नेता, छगन भुजबल साहब दिग्गज नेता, एक से एक, सुनील तटकरे जी उसे भी दिग्गज, तो एक बहुत ही पवार साहब ने इनको हमेशा टायर 1 का लीडर कहा, और आज जब उनको अपने से जूनियर फडणवीस के सामने, अपने से जूनियर
एकनाथ शिंदे साहब के सामने जाके मुजरा करना पड़ रहा है, तो जो अंदर से इंसल्टिव फीलिंग हो रही है अपने अपने आप के बारे में, उनको अपना जमीर वो अनुमति नहीं दे रहा है कि रोज जाके फडणवीस साहब को मुजरा करे, रोज जाके एकनाथ शिंदे साहब को मुजरा करे। और निश्चित जी। रूप से इसके कारण थोड़ा सा वो व्हाट यू से अंतरात्मा उनको वो आवाज दे रही है कि भाई अभी साइड में हट जाओ, कुछ नहीं मिले तो भी ठीक है लेकिन साइड में हट जाओ। जी, ये तो नाचने वाली बना दिया हमको। चलिए बस चलते चलते सर, वन लिटिल पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स एंड एवरीबडी एल्स टू। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द एशियन गेम्स, an Indian girl has won the gold medal in the javelin throw. Anu Rani has just won the gold medal in the javelin throw, which is amazing, absolutely amazing, right? Congratulations. Nilesh Bhonsle साहब, thank you very much for joining us. नमस्कार सर। और भोसले साहब आज खुलकर बात की एकदम, आज पहली बार देखा मैंने भोसले साहब ने पूरे बड़े खुल के full force बात, दिल से बात करी सर आपने आज, मजा आ गया। थैंक यू सर। मजा आ गया बात करके, थैंक यू। और आज बड़े फ्रेश लग रहे हैं, वैसे भी मैंने बोला ना, बहुत बहुत फ्रेश लग रहे हैं मेरे को। थैंक यू सर, Thank you, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। That was Mr. Nilesh Bhonsle. See, I didn't call him Nilesh Chauhan. I called him once by there's mistake. so many Chauhans there. You got Suraj Chauhan who is with Ajit Pawar. Yes. And every day Suraj Chauhan always gives something or the other that says And at Ajit the Pawar is moment, this, at the this moment party with is us, this. Pradeep ji, let's not forget our old friend Mr. Bharat Soni. We can't take him for बिल्कुल, granted.